Hello to all. So today's topic is regarding Google Scholar, and we are today going to do the complete breakdown of Google Scholar, since very basic features and very important features are there with Google Scholar, which till date we haven't discussed. So it is very important as a researcher or as a person who is using Google Scholar, we should aware of it. Very first important thing, if you are a researcher, if you want to find out some research article, if you are a student or any profession, but you want to research, you want to find out some research article, in that case you should go with Google Scholar instead of Google only. So what is Google Scholar? Google Scholar is a part of Google only, or we can say it's a kind of sister of or sister brother of Google only. So, but as the name is Google Scholar, this is basically for scholars' purpose to uh, scholar. We can say not only the research scholar, any student, anyone who wants to find out some research articles. So now I'm just going to start with it. So this is the area where we can write it down anything to find it out research. We can find it out any keyword and all, uh, and keyword or title, we can just find it out over here. Other than that, if you can see, there are two things, two particular points are given over here. One is my profile and one is my library on the left hand side, and one this particular menu bar. Similarly, on the right hand side, if it is visible, my photo is there, which is saying this is my actually Google account. So for Google Scholar, for my profile and all, you should have a Google account. So sorry, Gmail account. So Gmail account is must for Google Scholar. So please prepare Google Gmail account, so only you will be able to open my profile. So if you will click over here on the my profile or menu में भी जाके, you can see my profile, my library options is available over there. My profile में अगर जाते हैं, I will click on my profile, तो मेरा profile already Google Scholar पे बना हुआ है. तो each and every information Google Scholar will give me. So I'll just let you, I'll just show you. मैंने last video में ये दिखाया भी था प्रोफाइल कैसे किसी का, वी कैन चेक इट आउट. तो सी, अगर मैं माय प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ, दिस इज आई एम ओपनिंग सम अदर पर्सन प्रोफाइल. सो दिस इज गोइंग टू बी द, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोफाइल यू विल एबल टू ओपन इफ यू आर ओपनिंग समवन एज प्रोफाइल. अपनी भी अगर आपने क्रिएट की होगी और आपके पब्लिश पेपर्स होंगे, तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका टोटल साइटेशंस कितनी है, आपका एच इंडेक्स कितना है, आई टेन इंडेक्स कितना है, कितनी ईयरली साइटेशन आपकी हो रही है. एवरीथिंग विल बी देयर, बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट योर माई प्रोफाइल वन. So if you don't have your profile on Google Scholar, it is just a very simple thing, format to go with it. Hardly 5 minutes it will take. So you just have to create it from my profile. Second thing comes is, which is very important, that is my library. So what happens in library, the same thing is going to happen over here, but the difference is going to be this is my library. My library means the person who is operating it. So this is my library. So when we are going to open it out, so what we can see, अभी के लिए मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल सेव नहीं कर रखा. इफ आई कैन जस्ट ओपन हियर फ्रॉम रीडिंग लिस्ट, देयर इज नथिंग मेंशन एज सच. हाँ, कुछ कुछ आर्चीव्स में पड़े हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज, इफ आई कैन जस्ट लेट यू नो, जैसे माय फेवरेट टॉपिक, आई एम जस्ट ओपनिंग इट. सो आई एम गोइंग टू सेव दीज पर्टिकुलर आर्टिकल. सो सेव कैसे करना है वो आपको बताया ही था. जब आप कोई भी आर्टिकल सर्च आउट करते हैं, तो यहाँ पे स्टार बटन आता है और सेव ऑप्शन आता है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्टार और सेव बटन, ये आपकी लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाता है, which is going to be very helpful for to you to make a kind of online portal for you for your library. So when I'm going to open my library now, you can able to see these three articles are given over here. Similarly, what we can do is आई कैन लेबल देम ऑल्सो. लेबल मतलब मैं किसी को भी किसी भी तरीके का लेबल दे सकती हूँ.
फॉर एग्जाम्पल दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल, वैसे तो सारे इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। आई एम जस्ट लेबलिंग इट कि ये आर्टिकल टू सब कुछ इंफॉर्मेशन तो गिवन है, इसको मैं रीड लेटर का लेबल दे देती हूँ, मैं इसको बाद में पढ़ूंगी। Similarly, I'm just labeling this particular article as नया कुछ दे देते हैं, that is this is having moderation से related article है, so I'm just labeling it like this. So and what I'm trying to show you, see, when I'm just going to see these papers again, अगर बाय चांस मैं दोबारा कभी इन फ्यूचर सर्च करती हूँ और मुझे ये वाले आर्टिकल यहाँ पे नजर आते हैं, they just went, okay, so these were the articles. Okay, it's not visible right now, maybe some issue, I'll just show you somewhat. uh, so what is going to happen, एक बार हम माई लाइब्रेरी में देख लेते हैं. Yes, so now if you can see here it is happening. So this article, by default it is going to show you that your label over here कि मैंने read later का दे रखा है, मतलब अभी मुझे पढ़ना है, आप पढ़ लेंगे तो उसको कुछ और दे सकते हो. सिमिलरली इसको मैंने मॉडरेशन का दे दिया. सिमिलरली एनी काइंड ऑफ लेबलिंग यू कैन डू विद द आर्टिकल्स कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 4-5 ऑब्जेक्टिव, तो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव 1 का आर्टिकल ये है, ऑब्जेक्टिव 2 का. सो लाइकवाइज यू कैन लेबल ऑन दैट. तो अगर मुझे एक आधा लेबल रीड लेटर के साथ मुझे कुछ और लेबलिंग भी इसको करनी है कि ये रीड लेटर भी है प्लस मॉडरेशन भी है, तो आई कैन डू मल्टीपल लेबलिंग ऐसे. सो इफ यू कैन सी ओवर हियर मॉडरेशन एंड रीड लेटर दोनों ही यहाँ पे शो हो रहा है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद my library. So now I'm again on the main homepage of Google Scholar. So my profile I just let you already discussed. We just discussed kya hai my library. I just discussed. Now we will see what as features are there. So one more thing. This is my account. The right hand side. If you can just open it out, तो आपको अपनी Gmail की information सारी जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे. So this is what you should have your Gmail account, what we just discussed. After that, my profile we have done, my library feature we have done. The next feature is alert ka feature. So what is alert ka feature? If you want to create any alert, this is why I'm saying कि आपका Gmail ID होना चाहिए, because उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे. सो अलर्ट के केस में जैसे मेरे पे ऑलरेडी मैंने अलर्ट लगा रखा है कि कोई भी मेरे आर्टिकल्स जो मैंने पब्लिश करे हुए हैं उनके ऊपर अगर कोई साइटेशन करता है, मतलब कोई पढ़ के उसको अपने आर्टिकल में साइट करता है, तो उसका मुझे पता चल जाए, मेरी ईमेल पे आप भेज दीजिएगा नोटिफिकेशन. तो दैट इज द अलर्ट आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर. सिमिलरली आई कैन क्रिएट अलर्ट. हाउ क्रिएट अलर्ट पे आप लिखिए किस चीज का आपको अलर्ट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अलर्ट करवाना है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक मिनट, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई नया पेपर मार्केट में आता है तो उसके रिलेटेड मुझे अलर्ट चाहिए. तो दे आर सेइंग ये 2022 के दिखा रहे हैं कि ये पेपर्स आ रखे हुए हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑल टाइप ऑफ whatever is going to happen in capital structure, इसको थोड़ा और रिफाइन कर देंगे अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म परफॉर्मेंस मेरे को देखना है. तो whatever is going to happen on capital structure and firm performance in whenever you are going to create alert, उसके बाद कभी भी कुछ होता है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है आपको नोटिफिकेशन जो है मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स की मिल जाएगी. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अलर्ट फीचर what we are having in Google Scholar, which is very important. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बार बार आप सर्च नहीं करने में इंटरेस्टेड, कुछ भी होता है और आपको पता चल जाए, तो what you can do is you can just create an alert on that. Next one we are having is main window पे जाते हैं Google Scholar पे. So we are having matrix. So we can just see what is matrix, which is again very important feature. Matrix में मैंने click किया, so what you can see, top publication on the basis of H index,
आई इंडेक्स एंड सब जिनकी बहुत ज़्यादा साइटेशन हुई है पर्टिकुलर ईयर में, सो ये टॉप पब्लिकेशंस इन्होंने आपको दे दी है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं व्यू ऑल करती हूँ तो ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी टॉप आपकी 100 टॉप ये बता रहा है, तो 100 टॉप की दे दी है लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है। व्हाट वी कैन डू, बिकॉज मे बी ये जो भी टॉप दे रहा हो हमारी कैटेगरी के जर्नल्स ना हो, सो व्हाट वी कैन डू इज आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किसी और डिफरेंट लैंग्वेज का पेपर चाहिए, मुझे फ्रेंच पेपर या जापानीज लैंग्वेज में पेपर चाहिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर। बट व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट, ये आपको कैटेगरीज इफ यू कैन सी देर आर ईच एंड एवरी कैटेगरी, आपको सोशल साइंस का चाहिए, टॉप टॉप पब्लिकेशन इस टाइम पे कौन सी है, फिजिक्स का चाहिए, ह्यूमैनिटी का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का चाहिए। तो ये सारे मेरे को उसने दे दिए, ये सारे टॉप जर्नल्स हैं। अब उसमें भी अगर मुझे सब कैटेगरी करनी है, सो द ऑप्शन इज देयर एंड आई कैन, मैनेजमेंट में भी देयर इज अ कैटेगरी एंड इन दैट इफ आई नीड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इस बार के टॉप जर्नल्स पूछ लिए। सो दे आर सेइंग दीज आर द टॉप जर्नल। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंस के चाहिए, तो फाइनेंस के दीज आर दी टॉप जर्नल्स जिनकी सबसे ज्यादा साइटेशंस हो रखी हैं। तो इफ आई कैन जस्ट, द जर्नल ऑफ फाइनेंस इज गिवन, आई कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, जर्नल ऑफ फाइनेंस में भी जो टॉप साइटेड पेपर्स हैं, यू विल बी एबल टू ओपन दोज पेपर एज वेल। ये मेन पॉइंट था हमारा कि उसमें भी कौन से टॉप साइटेड पेपर्स हैं, सो यू विल ओपन टू, यू विल बी एबल टू ओपन दैट। तो अगर आप देखें फाइनेंस में ये टॉप थ्री पे ये जर्नल आ रहा है, जर्नल ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक्स के में देखें तो फिफ्थ नंबर पे है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में 16th नंबर पे जर्नल आ रखा है। तो दिस इज हाउ वी कैन go with this particular thing, the top publication from matrices। तो अगर आपको मेन विंडो गूगल स्कॉलर के होम पेज पे जाना है, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, तो आप यू विल डायरेक्टली विल बी लैंडेड ओवर देयर। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, अलर्ट लगाना है तो अलर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। मैट्रिसेस से आई told you, we discussed that what we are going to get the top publication and top journals as well as top articles of that journal, we will be able to find out so that we can सी क्या टॉप में चल रहा है, मेरे को वो आर्टिकल पढ़ना है या मेरे से रह ना जाए। लास्ट, सेकेंड लास्ट इज एडवांस सर्च। तो हम एडवांस सर्च पे अगर क्लिक करते हैं, सो दिस इज समथिंग इज गिवन ओवर हियर, but for this particular advanced research only, next most probably the next video is going to be on advanced research search only, because it will take somewhat more time। so अगर अभी मैं इसको इस particular point को लेती हूँ तो मे बी मैं पूरा justice ना कर पाऊँ। so I'm going to prepare a separate video on this advanced search। next one is your settings, very important। settings एक बार देख लेते हैं, what is in settings। settings में if you can see, this is the main things over here, languages, library link, account and button। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पता है और जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंग्वेजेस एंड लाइब्रेरी लिंक। account and button is also important but not used much। तो दिस इज वेरी सिंपल, पेज पर रिजल्ट पर पेज, कि आपको एक पेज पे कितने, जब आप सर्च करें सेटिंग्स में, आपको ना आपकी सेटिंग्स भी चेंज हो जाएंगी कि जब आप सर्च करें तो क्या क्या होना चाहिए। मैंने, मेरे को 10 से ज्यादा एक पेज पे चाहिए, 20 चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, बट इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। इससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला, 10 आए 20 आए, आगे करके हम बाकी के 10 भी देख लेंगे। where result open each result, each selected result in the new browser window, this can be a kind of good one। क्या है बोल रहा है कि अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, क्या होता है कि व्हेन वी आर सर्चिंग ऑन गूगल स्कॉलर, अगर आपको कोई आर्टिकल पसंद आया, तो अगर आपने इस पर क्लिक किया तो वो उसी पेज पे वो आर्टिकल खुल जाएगा, which is sometimes or majority of the times is not fine। we don't like it दैट मच। हमें चाहिए कि दूसरे पे खुलता, हम एक बार बाकी का देख लेती, या उसको हम वहीं पे ओपन इन न्यू ब्राउजर कर लेते हैं। बट अगर आपने इसको चेक कर रखा है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट ही आपका न्यू ब्राउजर विंडो पे चला जाएगा। दिस इज योर bibliography, don't show any citation important, so this is you can just save it over here if you make any kind of different changes। then library link, which is very important, ये होगा library link
शो लाइब्रेरी एक्सेस लिंक, व्हाट इज इट? अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का में कोई पर्टिकुलर जर्नल या publisher का access they have and you have the that particular university's libraries access. For example, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी का एक्सेस ऑब्वियसली आपके पास होगा. तो what you can do, you can just type it down your university over here, like इसमें लिखा हुआ है हार्वर्ड. तो आप आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है अगर यहाँ पे शो हो रही है तो आप जो है उसको अपना आपका यूनिवर्सिटी अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन जस्ट चेक दिस बॉक्स एंड सेव दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट आई विल जस्ट लेट यू नो. अगर अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ सर्च करती हूँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंस भी कर लेते हैं. सी दिस इज द डिफरेंस. आपको साथ में लिंक आ जाएगा कि अगर जैसे ये वाला आर्टिकल आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, इसकी इसकी पीडीएफ नहीं है, बाकियों की तीनों की पीडीएफ है. इसमें वो बोल रहा है कि हार्वर्ड लाइब्रेरी पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, वहां पे अवेलेबल है ये. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल बी एबल टू सी in case of your you have access of any library. तो in that case you जैसे ये वाला हार्वर्ड में भी नहीं है पेपर. तो this is what I'm trying to say is going to happen if you want to uh, you can put your library link as well. तो अभी मैं इसको अनचेक कर देती हूँ कि मेरे पास तो हार्वर्ड का एक्सेस नहीं है. सो दिस इज डन विद द सेटिंग पार्ट ऑल्सो. इसमें आपका अकाउंट रह गया है एक. तो अकाउंट में दिस इज लाइक साइंड इन ऑफ कैंपस में भी कर लो, ये भी कर लो. बटन जो है, बटन फीचर इज लाइक I haven't used this feature much, but what is this? This is a kind of extension of Google Scholar only. You can try it out and you may comment it down also that what is going to happen. I am not using this particular feature right now. जैसे मैं करूँगी I'll make video on that as well. So this is done. I suppose I'll just check it out कुछ share तो नहीं किया Google Scholar पे आपका. So as for me एवरीथिंग इज डन. अदर और भी बहुत फीचर्स हैं गूगल स्कॉलर में सर्च करने के रिलेटेड, उसकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं एंड आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, सो यू मे check those videos as well. So thank you very much.